हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं पूजा तुरंगनी एंड मैथ सॉल्यूशन चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो हम देख रहे थे इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन का लास्ट एक्सरसाइज विच इज 3.4। तो 11 तक तो हमने कंप्लीट कर दिया है। सो आज हम नेक्स्ट इंटीग्रल्स देखेंगे, ठीक है। सो द फर्स्ट इंटीग्रल इज इंटीग्रेशन ऑफ 2 raised to x अपॉन 4 raised to x माइनस 3 into 2 raised to x माइनस 4। क्या करना है, सबसे पहले लेट I is equal to given इंटीग्रल which is equal to integration of 2 raised to x upon this 4 raised to x can be written as 2 raised to x bracket square minus 3 into 2 raised to x minus 4 into dx। मुझे यहाँ फंक्शन भी दिखाई दे रहा है और फंक्शन का डेरिवेटिव कौन सा है फंक्शन, तो देखो 2 raised to x is our function। put 2 raised to x is equal to t। आप बोलोगे मैडम 2 raised to x का डेरिवेटिव कहाँ दिखाई दे रहा है, देखते हैं। differentiate this with respect to x। okay, 2 raised to x का डेरिवेटिव क्या होता है, 2 raised to x into log 2 which is equal to dt upon dx। ठीक है, this can be written as 2 raised to x dx is equal to dt upon log 2। एंड देखो 2 raised to x dx हमारे पास, इसका मतलब फंक्शन भी है एंड फंक्शन का डेरिवेटिव, ठीक है। therefore I is equal to इंटीग्रेशन 1 अपॉन, यहाँ t पुट करना है तो हमें मिलेगा t स्क्वायर माइनस 3t माइनस 4 एंड 2 raised to x dx के लिए हमें क्या मिला है, dt अपॉन log 2। ठीक है, तो ये जो डिनोमिनेटर में log 2 है ये तो कांस्टेंट है, तो इंटीग्रेशन से बाहर आएगा। therefore I is equal to 1 अपॉन log 2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन t square minus 3t minus 4 whole into dt। To evaluate this integral, here we have to find third term। ठीक है, third term is equal to half into coefficient of t bracket square which is equal to 9/4। Now 1 upon log 2 integration of 1 upon t square minus 3t plus 9/4 minus 9/4। Add and subtract third term in denominator minus 4 whole into, therefore I is equal to 1 upon log 2 integration of 1 upon these three terms means t minus 3/2 bracket square minus by taking cross multiplication here we get 25 upon 4। ठीक है, therefore I is equal to 1 upon log 2 integration of 1 upon first term as it is t minus 3/2 bracket square minus this 25/4 can be written as 5/2 bracket square and whole into dt, यहाँ dt। ठीक है, तो अब आप देख सकते हो फर्स्ट इज अ वेरिएबल, सेकंड इज अ कांस्टेंट। तो कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर विच इज इक्वल टू 1 अपॉन 2a log of mod of x minus a अपॉन x plus a mod complete plus c। therefore I is equal to 1 upon log 2 into 1 upon 2 कौन लेना है, a की वैल्यू क्या है 5/2 इंटू log of mod of x minus a t minus 3/2 minus 5/2 upon t minus 3/2 plus 5/2 mod complete plus c। ठीक है, therefore I is equal to 2 get cancel 1 upon 5 into log 2 into log of mod of t minus, देखो यहाँ -5 -3 अपॉन 2 मीन्स -4। ठीक है, अपॉन t 5 -3 2 and 2 upon 2 means here we get 1 mod complete plus c। therefore I is equal to 1 upon 5 into log 2 into log of mod of, बट t हमने किसके लिए लिया था, 2 raised to x के लिए, तो बैक सब्स्टिट्यूट तो करना होगा। 2 raised to x minus 4 upon 2 raised to x plus 1 mod complete
दिस इज आवर नेक्स्ट इंटीग्रल. फर्स्ट लेट i इज इक्वल टू गिवन इंटीग्रल. देखो ये लीनियर फैक्टर दिखाई दे रहा है, ये भी फैक्टर लीनियर है, लेकिन ब्रैकेट का स्क्वायर है मींस रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स है. तो टाइप नंबर 2 हम यूज कर सकते हैं. सो फॉर दिस 3x minus 2 upon x plus 1 bracket square into x plus 3 can be expressed as a upon original factor x plus 2 plus b upon repeated factor means x plus 1 bracket square plus c upon our second factor x plus 3 and give this equation as a number first. ठीक है. Therefore 3x minus 2 upon x plus 1 bracket square into x plus 3 which is equal to, here we have to take LCM. LCM क्या मिलेगा हमें, यहाँ जो होता है ना वही टर्म हमें यहाँ चाहिए. तो x plus 1 bracket square into x plus 3. देखो ये टर्म हमें यहाँ भी चाहिए. x plus 1 है ओके, तो कौन चाहिए और हमें और एक x plus 1 चाहिए जिससे ब्रैकेट का स्क्वायर होगा into x plus 3 plus b into x plus 1 ब्रैकेट स्क्वायर की टर्म तो है हमारे पास, कौन नहीं है x plus 3. ठीक है. एंड प्लस c के लिए देखो x plus 3 की टर्म है, कौन नहीं है x plus 1 ब्रैकेट स्क्वायर. ठीक है. दिस टर्म गेट कैंसल. Therefore 3x minus 2 is equal to a into x plus 1 into x plus 3 plus b into x plus 3 plus c into x plus 1 bracket square and here we have to find constant a b c. यहाँ भी x plus 3 है, यहाँ भी x plus 3 है. Put x plus 3 is equal to 0 means x is equal to minus 3. देखो ये टर्म भी 0 हो जाएगा, ये टर्म भी 0 हो जाएगा. इसका मतलब हमें कौन मिलेगा c. ठीक है. क्या मिल रहा है therefore x की जगह पे -3 पुट करना है. -3 into 3 -9 -9 minus 2 -11 which is equal to, ये टर्म 0 हो जाएगा, ये टर्म भी 0 हो जाएगा. c into अगर यहाँ हम -3 पुट कर दे -3 plus 1 -2 and -2 का स्क्वायर क्या होता है 4. तो इसका मतलब c की वैल्यू हमें मिली 11/4. ठीक है. नाउ सेकंड पुट x plus 1 is equal to 0 क्योंकि यहाँ भी x plus 1 है, यहाँ भी x plus 1 है. इसका मतलब x is equal to -1. Therefore देखो यहाँ हमें मिलेगा 3 into -1 -3 -2 means -5. ये टर्म 0 हो जाएगी, ये टर्म भी 0. b into x की जगह पे हमें पुट करना है -1 plus 3. Therefore -5 is equal to b into 2. Therefore b is equal to -5. ठीक है. हमें c मिला है, b मिला है. अब हमें कौन फाइंड आउट करना है, a फाइंड आउट करना है. क्या 0 पुट करें दिमाग में, यहाँ तो कुछ भी नहीं बाकी. x plus 3 भी हो गया, x plus 1 भी हो गया. अब क्या पुट करना है, आप कौन से भी वैल्यू पुट करो, a आपको मिल जाएगा. कौन से, ऐसा नंबर पुट करना है जो छोटा होगा. बड़ा पुट करोगे तो भी वैल्यू मिलेगी, लेकिन सॉल्व करने के लिए वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा. तो मैं यहाँ पुट कर रही हूँ पुट x is equal to 0. आपको जो पुट करना है आप करो. -1 तो हो चुका है, वो फिर से पुट नहीं कर सकते. -3 भी नहीं. अगर आप चाहो तो आप 1 भी पुट कर सकते हो. x is equal to 1, x is equal to 0 पुट करो या x is equal to 1 2 3 कुछ भी पुट करो. आपको a की वैल्यू एक ही आनी है, a डिफरेंट नहीं मिलेगा, एक ही मिलने वाला है. ठीक है. देखो therefore x is equal to 0 पुट करना है means -2 is equal to here a into 0 plus 1 1 0 plus 3 3. तो यहाँ है 3. ठीक है. प्लस 3b प्लस x की वैल्यू 0 मीन्स यहाँ बचा है c. ठीक है. therefore -2 3 ये तो हमें फाइंड आउट करना है प्लस 3 b हमें मिला है. b की वैल्यू क्या मिली है -5/2 एंड c मिला है -11/2. c हमें मिला है -11/4. therefore -2 is equal to 3 -50/2 -11/4. therefore -2 is equal to 3. यहाँ 4 है, यहाँ भी हम 4 ला सकते हैं. तो क्या मिलेगा हमें -30/4 -11/4.
therefore -2 is 3a. डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर की एडिशन ले सकते हैं, -41/4, therefore -2 plus 41/4 which is equal to 3, therefore -8 plus 41/4 which is equal to 3. तो फाइनली हमें मिल रहा है 33/4 which is equal to 3a, मीन्स a की वैल्यू हमें मिल रही है 11/4, c है -11/4 एंड a है 11/4. ठीक है, तो a b c की वैल्यू हम कहाँ पुट करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट में. सो इक्वेशन फर्स्ट बिकम्स, देखो, therefore 3x - 2 upon x plus 1 bracket square into x plus 3 is equal to, a की वैल्यू पुट कर देते हैं 11/4 अपॉन में कौन है x plus 1, b की वैल्यू -5/2 अपॉन x plus 1 ब्रैकेट स्क्वायर एंड c की वैल्यू -11/4 अपॉन x plus 3. तो ये वैल्यू हमें किसकी मिली है, हमारे इंटीग्रैंड की, जिसका हमें निकालना है इंटीग्रेशन. ठीक है, therefore I is equal to integration of this new value 11/4 upon x plus 1 -5/2 upon x plus 1 bracket square -11/4 upon x plus 3 and whole into dx. Okay, therefore I is equal to 11/4 तो कांस्टेंट है तो इंटीग्रेशन से बाहर आएगा. हियर जस्ट सेपरेट देंगे, अंदर बचेगा 1/x plus 1 माइनस 5/2 कांस्टेंट है, अगेन इंटीग्रेशन से बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x plus 1 ब्रैकेट स्क्वायर मींस बाय यूजिंग लॉ ऑफ इंडाइसेस x plus 1 ब्रैकेट रेज़ टू माइनस. ठीक है, एंड लास्ट वन -11/4 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा 1/x plus 3. ठीक है, therefore I is equal to 11/4, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, log of mod of x plus 1 minus 5/2 into, यहाँ कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, x raised to n का, तो पावर x से बढ़ाना है एंड वही नीचे लेना है, -11/4 log of mod of x plus 3 mod complete plus c. ठीक है, थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं. therefore I is equal to, यहाँ भी 11/4 है, यहाँ भी 11/4 है, सो 11/4 कॉमन ले लेते हैं, log m minus log n means log of m upon n, so log of mod of x plus 1 upon x plus 3 mod complete, this negative becomes positive, तो यहाँ हमें मिलेगा 5/2 into x plus 1 bracket raised to -1 means 1/x plus 1 and plus c. So this is required solution. Okay, this is our next integral. अगर आप डिनोमिनेटर अच्छी तरह से देखो तो लीनियर फैक्टर्स नहीं दिखाई दे रहे, रिपीटेड हो या नॉन रिपीटेड, लेकिन लीनियर फैक्टर्स नहीं है. तो क्या करेंगे मैम, देखो थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं. 5x square plus 20x plus 6 अपॉन, यहाँ से अगर हम x कॉमन ले लें तो अंदर बचेगा x square plus 2x plus 1 into dx which is equal to integration of 5x square plus 20x plus 6 अपॉन x into, अगर आप अच्छी तरह से देखो, x square plus 2x plus 1 means x plus 1 ब्रैकेट स्क्वायर. ठीक है, तो देखो ये रहा लीनियर फैक्टर, ये फैक्टर भी लीनियर है लेकिन कैसा है, रिपीटेड, तो हम यूज करेंगे टाइप नंबर 2. therefore 5x square plus 20x plus 6 upon x into x plus 1 bracket square is equal to a upon first factor plus b upon first original factor and then c upon repeated factor. Okay, and give this equation as a first. therefore 5x square plus 20x plus 6 upon x into x plus 1 bracket square which is equal to, here by taking LCM we get, क्या मिलेगा LCM हमें, x into x plus 1 bracket square. a x तो है यहाँ, कौन चाहिए, x plus 1 bracket square. b के लिए x plus 1 bracket square चाहिए ना,
मीन्स हमें एक x और एक x प्लस 1 चाहिए एंड c के लिए कौन चाहिए, सिर्फ x। ओके, तो आप देख सकते हो डिनोमिनेटर गेट कैंसल, देयरफॉर 5x स्क्वायर प्लस 20x प्लस 6 विच इज इक्वल टू क्या बचा है, a इंटू एक्स प्लस 1 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस bx into x plus 1 plus 6. Now here we have to find unknown constant a, b and c. To find a, put, देखो ये फाइंड आउट करना है मीन्स ये दो टर्म जीरो होनी चाहिए। कब जीरो होगी, देखो यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, सिंपली x। तो x की वैल्यू अगर हम जीरो पुट कर देंगे तो ये दो वैल्यूज, ये दो टर्म्स जीरो हो जाएगी। ठीक है, ये जीरो होगा, ये भी जीरो होगा, क्या बचेगा, 6 इज इक्वल टू a इंटू x की वैल्यू जीरो है, जीरो प्लस 1 का स्क्वायर 1, तो a हमें मिला 6। ठीक है, सेकेंड देखो हमें फाइंड आउट करना है अब c, पुट x प्लस 1 इज इक्वल टू b। क्यों फाइंड नहीं किया बताती हूँ, हमें c फाइंड आउट करना है, यहाँ पे x प्लस 1 है, यहाँ पे x प्लस 1 है, सो पुट x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, देयरफॉर वी गेट x इज इक्वल टू -1। देखो क्या मिलेगा, यहाँ 5, यहाँ -20, 6 as it is which is equal to ये टर्म 0, ये टर्म भी 0, यहाँ क्या मिलेगा, यहाँ क्या मिलेगा -1। therefore 5 plus 6 11 means यहाँ बचा है -9 which is equal to -c, therefore c is equal to, okay। now last one, अब हमें फाइंड आउट करना है b। x plus 1 is equal to 0 पुट किया है एक बार x is equal to 0 पुट किया है, अब कुछ बचा ही नहीं है 0 पुट करने के लिए, तो क्या पुट करेंगे, आपको जो अच्छा लगे वो पुट कर दो। ठीक है, मैं x is equal to 1 पुट कर देती हूँ। एक्चुअली छोटा नंबर लेना है जिससे कैलकुलेशंस आपको कम करने हो, अगर आप बड़ा नंबर लोगे तो भी आंसर वही आने वाला है। ठीक है, पुट x is equal to 1, देन वी गेट 5 plus 20 plus 6 which is equal to, देखो a into 1 plus 1 2, 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, यहाँ देखो b, x की वैल्यू हम पुट कर रहे हैं 1 plus 1 मींस यहाँ मिलेगा 2 plus c, क्योंकि x is equal to 1 पुट किया है। ठीक है, therefore यहाँ हमें मिलेगा 31 which is equal to 4, a हमें मिला है 6, 2b, b हमें फाइंड आउट करना है एंड c की वैल्यू क्या है 9। ओके, therefore 31 minus 24 minus 9 which is equal to b, therefore यहाँ हमें मिलेगा -2 which is equal to 2b, therefore -1 is equal to b, b की वैल्यू हमें मिलेगा। तो a, b and c कहाँ पुट करना है, इक्वेशन फर्स्ट में, सो इक्वेशन फर्स्ट becomes therefore 5x square plus 20x plus 6 upon x into x plus 1 bracket square which is equal to, a हमें मिला है 6 अपॉन कौन है x, b हमें मिला है -1 अपॉन x plus 1 एंड c मिला है 9 अपॉन x plus 1 ब्रैकेट स्क्वायर। ये कौन है हमारा इंटीग्रैंड जिसका हमें निकालना है इंटीग्रेशन, therefore I is equal to integration of this new term 6 upon x minus 1 upon x plus 1 plus 9 into this 1 upon x plus 1 bracket square can be written as x plus 1 bracket raised to -2 and whole into here just separate the integral and take integration। मैं डायरेक्टली लिख रही हूँ, देखो I is equal to 6 कांस्टेंट है बाहर आ गया, 1 upon x का इंटीग्रेशन log of mod of x माइनस इसका इंटीग्रेशन क्या होगा log of mod of x plus 1 plus 9 into यहाँ कौन सा फॉर्मूला यूज करना है x raised to n का, तो हमें मिलेगा x plus 1 ब्रैकेट raised to -1 upon -1 plus c, therefore I is equal to log of ये 6 बाय जिन log एक्सपोनेंट x के पावर में जाएगा, तो यहाँ हमें मिलेगा x raised to 6 माइनस log of mod of x plus 1। ठीक है, यहाँ मिलेगा -9 1 upon x plus 1 and
प्लस सी। देखो यहाँ log m माइनस log m का रूल हम यूज कर सकते हैं, विच इज log of m अपॉन n। therefore I is equal to log of mod of x raised to 6 upon x plus 1 minus 9 upon x plus 1 plus c. So this is the required solution. So the next is this. Let I is equal to given लीनियर फैक्टर्स दिखाई दे रहे हैं डिनोमिनेटर में, फैक्टर्स ही नहीं दिखाई दे रहे, तो क्या करना है? देखो इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x एज इट इज 1 प्लस 4x क्यूब प्लस 3 इंटू x क्यूब का स्क्वायर दिस x रेज़ टू 6 एंड इंटू दिस। सपोज हमने x क्यूब को फंक्शन मान लिया तो x क्यूब का डेरिवेटिव क्या होगा? 3x स्क्वायर। ठीक है, तो वो है यहाँ नहीं, लेकिन हम वो एडजस्ट कर सकते हैं। देखो 3x स्क्वायर ने मल्टीप्लाई भी किया और 3x स्क्वायर ने डिवाइड भी किया। ठीक है, देखो हमें क्या मिल रहा है, ये 1 अपॉन में कांस्टेंट है ना, तो इंटीग्रेशन से बाहर लेंगे। इंटीग्रेशन ऊपर कौन है? 3x स्क्वायर dx अपॉन x स्क्वायर इनटू x मींस x क्यूब इनटू 1 प्लस 4x क्यूब प्लस 3x क्यूब का स्क्वायर। ठीक है, अब पुट फंक्शन इज इक्वल टू x क्यूब इज इक्वल टू t, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, 3x स्क्वायर dx इज इक्वल टू t। तो फाइनली I इज इक्वल टू 1/3 तो कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन से बाहर आएगा। इंटीग्रेशन ऑफ 3x स्क्वायर dx के लिए हमें क्या मिला है? dt अपॉन x क्यूब की वैल्यू क्या है? t, सो t इनटू 1 प्लस 40 प्लस 3t स्क्वायर। ठीक है, ओके, तो अब क्या करें? इसके लिए क्या करना है? एक फैक्टर तो है ना लीनियर, इसका क्या करना है? फैक्टर्स निकाल लेते हैं। देखो 1 इंटू 3 मीन्स 3, ऐसे दो नंबर्स जिसका मल्टीप्लीकेशन 3 होना चाहिए एंड एडिशन 4, तो ऐसे कौन से दो नंबर्स हैं? 3 एंड 1। ठीक है, therefore I is equal to 1/3 इंटीग्रेशन ऑफ 1/t। ओके, तो ये सॉल्व करके देख लेते हैं जल्दी में, कुछ भी नहीं करना है। 1 प्लस दिस 40 कैन बी रिटन एज 3t प्लस t प्लस 3t स्क्वायर। ओके, तो यहाँ से 1 कॉमन ले लेते हैं, अंदर बचेगा 1 प्लस 3t, यहाँ से t कॉमन लेते हैं, अंदर बचेगा 1 प्लस 3। ठीक है, सो इन फर्स्ट ब्रैकेट 1 प्लस t एंड सेकेंड ब्रैकेट 3t प्लस 1। तो ये दो फैक्टर्स हमें मिले, t एज इट इज, देन 1 प्लस t एंड लास्ट वन इज 3t प्लस 1। ओके, अब देखो लीनियर है, लीनियर है, लीनियर है, एंड कैसे है? नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स। तो हियर वी यूज टाइप फर्स्ट, therefore 1/, call this integral as a first, 1/t into 1 plus t into 3t plus 1, which is equal to a upon first factor, b upon second factor and c upon third factor. Give this equation as a second, therefore 1/, denominator as it is, which is equal here by taking cross multiplication and by taking LCM we get t into 1 plus t into 3t plus 1। a के साथ कौन लेना है? 1 plus t 3t plus 1। b के साथ कौन लेना है? t into 3t plus 1 एंड c के साथ कौन लेना है? t into 1 plus t। आप देख सकते हो डिनोमिनेटर गेट कैंसिल। नाउ हियर वी हैव टू फाइंड अननोन कांस्टेंट a b एंड c। क्या बचा है देखते हैं। 1 is equal to a into 1 plus t into 3t plus 1, b into t into 3t plus 1, c into t into 1 plus t। a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इसका मतलब ये दो टर्म्स जीरो होनी चाहिए। कैसे जीरो होंगी? यहाँ भी t है, यहाँ भी t है, तो t की वैल्यू हम क्या पुट कर सकते हैं? 0। सो टू फाइंड a पुट t इज इक्वल टू 0। देखो यहाँ तो 1 है, कुछ चेंज नहीं होगा, ये a इंटू t की वैल्यू 0, 1 प्लस 0 1, यहाँ t की वैल्यू 0 मीन्स यहाँ बचा है सिर्फ 1, सो a इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये टर्म और ये टर्म, दो टर्म्स तो 0 हो चुकी हैं। ओके, एक्चुअली
आगे का वीडियो शूट नहीं हुआ था, वो बंद हो गया था, तो ये हम फिर से देख रहे हैं। तो t इज इक्वल टू 0 पुट किया, हमें a मिला है 1। नाउ टू फाइंड b, हमें कौन फाइंड आउट करना है, b मींस ये दो टर्म्स 0 होनी चाहिए, एंड ये दो टर्म्स 0 कब होगी, जब हम t प्लस 1 इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे। पुट t प्लस 1 इज इक्वल टू 0 मींस t इज इक्वल टू -1, यहाँ तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, 1 इज इक्वल टू दिस टर्म 0, दिस टर्म 0, हमें मिलेगा माइनस, हमें मिलेगा माइनस b इंटू माइनस 3 प्लस 1, देयरफॉर 1 इज इक्वल टू माइनस b इंटू माइनस 2, देयरफॉर b इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, एंड टू फाइंड c क्या करना होगा, पुट 3t प्लस 1 इज इक्वल टू 0 मींस ये टर्म भी 0 हो जाएगा, ये टर्म भी 0 हो जाएगा, देयरफॉर 3t इज इक्वल टू -1, देयरफॉर t इज इक्वल टू -1/3, we get 1 is equal to this term 0 here, -1/3 into c into -1/3 plus, ठीक है, therefore 1 is equal to -c/3 into 2/3, so finally we get c is equal to -9/2। तो ये थ्री वैल्यूज हम कहाँ पुट करेंगे, इक्वेशन सेकंड में। सो इक्वेशन सेकंड बिकम्स therefore 1 upon t into t plus 1 into 3t plus 1 which is equal to, फर्स्ट a पुट करना है, a की वैल्यू है हमारे पास 1 upon t, b मिला है 1/2 upon t plus 1 प्लस c की वैल्यू -9/2 upon 3t plus 1। ठीक है, सो ये है हमारा इंटीग्रेंड जिसका हमें निकालना है इंटीग्रेशन, देयरफॉर I is equal to integration of this new value 1 upon t plus 1/2 upon t plus 1 minus 9/2 upon 3t plus 1, and here now just separate the integral, what we get, मैं डायरेक्टली इंटीग्रेशन लिख देती हूँ, log of mod of t। हाँ, एक बात और बतानी है, जहां हमारा I था वहां हमने 1/3 कॉमन लिया था, तो 1/3 यहाँ आएगा और यहाँ भी आएगा। ठीक है, 1/t का इंटीग्रेशन log of mod t 1/2 कांस्टेंट है एज इट इज आएगा, log of mod of t प्लस 1, ठीक है, माइनस 9/2 log of mod of 3t प्लस 1 अपॉन 3 ब्रैकेट कंप्लीट प्लस c, देयरफॉर I is equal to 1/3 से अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 1/3 log of mod t की वैल्यू क्या है, x³ ओके, प्लस 1/6 log of mod of x³ प्लस 1 माइनस 3 into 3 9 9 9 get कैंसल, तो यहाँ बचेगा 1/2 log of mod of 3 t मीन्स x³ प्लस 1 mod कंप्लीट प्लस c। ठीक है, देखो हम एलसीएम 6 ले सकते हैं, यहाँ 6 से अगर यहाँ 6 लाना हो तो 3 से मल्टीप्लाई करना होगा, और अगर यहाँ 6 लाना हो तो 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, देखो therefore I is equal to, हमें मिलेगा 2/6 log of mod of x³, यहाँ चेंज नहीं होगा, log of mod of x³ प्लस 1, यहाँ यस 3/6 log of mod of 3x³ प्लस 1 mod कंप्लीट प्लस c, देखो यहाँ 1/6 है, यहाँ 1/6 है, यहाँ 1/6 है, तो 1/6 हम कॉमन ले लेंगे, ओके, बाय यूजिंग log इंडेक्स x2 यहाँ आएगा एंड दिस 3 यहाँ आएगा। ठीक है, तो क्या लिखेंगे हम, log of x रेज़ टू क्या मिलेगा 6 प्लस यहाँ log of mod of x³ प्लस 1 एंड यहाँ माइनस log of mod of 3x प्लस 1 ब्रैकेट रेज़ टू 3 ब्रैकेट कंप्लीट प्लस 6, therefore I is equal to 1/6, देखो log m प्लस log n का फॉर्मूला हम अप्लाई कर सकते हैं, सो व्हाट वी गेट log of x रेज़ टू 6 into x³ प्लस 1। ठीक है, एंड माइनस क्या है, माइनस log of 3x प्लस 1 ब्रैकेट क्यूब ब्रैकेट कंप्लीट प्लस 6, देखो कॉल दिस टर्म एज अ m एंड दिस टर्म एज अ n, सो log m माइनस log n कह सकते हैं हम log of
m upon n, therefore I is equal to 1/6 log of, हाँ आप मॉड भी लिख सकते हो, नहीं लिखो तो भी कुछ प्रॉब्लम है, x raised to 6 into x cube plus 1 upon 3x plus 1 bracket raised to 3 bracket complete plus c. So this is required solution. टेक्स्ट बुक में बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर्स रॉन्ग है, ओके, सो दिस इज, ये भी रॉन्ग है इसलिए बताया है, सो दिस इज रिक्वायर्ड सॉल्यूशन. दिस इज आवर नेक्स्ट पॉइंट. फैक्टर्स कहाँ है ना, देख लेते हैं. which is equal to integration of 1 upon this x cube minus 1 can be written as x minus 1 into x square plus x plus 1 by using formula a cube minus b, which is in first bracket a minus b and in second bracket a square plus ab plus b. ठीक है, तो देखो ये तो लीनियर फैक्टर है, x के पावर पर 1 है. आप बोलोगे मैम इसका क्या, इसके रियल फैक्टर्स नहीं निकलते, कॉम्प्लेक्स में जा सकते हैं लेकिन रियल फैक्टर्स नहीं, मींस हम यहाँ यूज कर सकते हैं टाइप नंबर 3. देयरफॉर our integrand 1 upon x minus 1 into x square plus x plus 1 which is equal to a upon first factor plus ये है नॉन क्वाड्रेटिक फैक्टर, तो क्या करना है, यस इसके लिए कुछ अलग है, dx plus c upon x square plus x plus 1 give this equation as the first. ठीक है, अब क्या करना है, सिंप्लीफाई कर लेते हैं. therefore 1 upon x minus 1 into x square plus x plus 1, here by taking LCM or cross multiplication we get a into x square plus x plus 1 plus x minus 1 into bx plus c upon x minus 1 into x square plus x plus 1. ठीक है, here these two terms get cancelled. What do we get, 1 is equal to a into x square plus x plus 1 plus x minus 1 into bx plus c. ठीक है, now here we have to find three unknown constant which is a, b and c. now what to do, first put x is equal to 1 or x minus 1 is equal to 0. हमें x minus 1 is equal to 0 प्रूव करना है, मीन्स ये टर्म हमारा 0 हो जाएगा और हमें कौन मिलेगा, a मिलेगा. ठीक है, therefore 1 is equal to a into here 1 here 1 here also 1, so we get 3. therefore a is equal to 1/3. okay, a तो हमें मिला है. to find next value put x is equal to 0. x is equal to 0 क्यों पुट कर रहे हैं, x is equal to 1 तो हो चुका, कुछ बाकी नहीं है. तो मैंने बताया आपको जो नंबर अच्छा लगे आप वो यूज कर लो, लेकिन छोटा नंबर लेना है. तो x is equal to 0 अगर पुट किया तो 1 is equal to, यहाँ हमें मिलेगा a 0 0 0 plus 1 1 मिलेगा. यहाँ देखो प्लस, यहाँ हमें मिलेगा -1 इंटू x की वैल्यू क्या पुट कर रहे हैं 0, ये रहा c. ठीक है, therefore 1 is equal to a क्या है हमारा 1/3 minus c. therefore 1 minus 1/3 is equal to minus c. therefore 2/3 which is equal to minus c and finally c is equal to -2. c की वैल्यू हमें मिलेगी -2/3. ठीक है, एंड नाउ लास्ट a मिला है, c मिला है, अब हमें कौन फाइंड आउट करना है, b. तो क्या करेंगे, पुट x is equal to -1. देखो 0 हो चुका है, 1 भी हुआ, तो कौन पुट करते हैं, -1. आपको जो पुट करना है आप वो पुट करो. ठीक है, देखो 1 is equal to a into -1 ले रहे हैं तो -1 का स्क्वायर प्लस 1 होगा, -1 एंड अगेन प्लस 1. ठीक है, प्लस -1 -2, यहाँ देखते हैं -b plus c. therefore 1 is equal to a into -1 प्लस अगेन कैंसिल 1 बचेगा. ओके, -2 से अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं 2b -2c. ठीक है, therefore 1 is equal to a हमें मिला है 1/3 पुट कर लेते हैं प्लस 2b ये हमें फाइंड आउट करना है -2. c की वैल्यू क्या है -2/3. therefore 1 is equal to 1/3. this negative becomes positive 4/3 plus 2b. therefore 1 देखो 4 plus 1 5/3, वो पॉजिटिव है, यहाँ आके नेगेटिव होगा which is equal to 2b. therefore -2/3 is equal to 2b and finally b is equal to -. अब चेक करो, तो abc हमें कहाँ प्रूव करना है, इक्वेशन फर्स्ट में. सो इक्वेशन फर्स्ट becomes
a था 1/3 अपॉन x माइनस प्लस b की वैल्यू क्या है -1/3x एंड c की वैल्यू है -2/3, ठीक है, एंड होल अपॉन x² + x + 1, ठीक है, एंड दिस इज आवर इंटीग्रैंड जिसका हमें निकालना है इंटीग्रेशन। देयरफॉर I is equal to integration of this new value 1/3 upon x minus 1 plus -1/3x, सॉरी यहाँ x नहीं है सिर्फ c है, -2/3 upon x² + x + 1 and whole into x। Okay, just separate the integral which is equal to 1/3 constant है इंटीग्रेशन से बाहर 1/x minus 1 plus here just separate the denominator, what we get -1/3 बाहर आएगा इंटीग्रेशन ऑफ x upon x² + x + 1, ठीक है, एंड -2/3 इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² + x + 1। ओके, तो इसका तो इंटीग्रेशन हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं। यहाँ क्या करना है, ऊपर px + q का फॉर्म है एंड नीचे क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, ये तो सिंपल ये निकाल सकते हैं, ठीक है, which is equal to 1/3 log of mod of x minus 1 minus 1/3 call this integral as I1 minus 2/3 call this integral as I2, और यहाँ इंटीग्रेशन लिया है ना तो प्लस c1 लिख लेते हैं, ठीक है, गिव दिस इक्वेशन एज अ सेकेंड, ठीक है, तो हमें निकालना है I1, दिस इज आवर I। नाउ फॉर I1 क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ x अपॉन x² + x + 1, क्या करना है, एक्सप्रेस x एज a into डेरिवेटिव ऑफ x² + x + 1 plus b, give this equation as a 3, ठीक है, therefore x is equal to a into डेरिवेटिव क्या होगा 2x plus x का डेरिवेटिव 1, ये 1 तो कांस्टेंट है, डेरिवेटिव 0 plus b, therefore x is equal to 2ax plus a plus b। देखो यहाँ भी लीनियर फंक्शन है, यहाँ भी लीनियर फंक्शन है, so by equating coefficients on both sides, by equating coefficients on both sides, what do we get, 2a is equal to 1 means a is equal to 1/2 and a plus b, यहाँ कांस्टेंट क्या है 0, so a is equal to -b, अगर a 1/2 है तो इसका मतलब b क्या होगा -1/2, ठीक है, तो ये a एंड b की वैल्यू हमें कहाँ पुट करनी है, इक्वेशन 3 में, सो इक्वेशन 3 becomes ओके, therefore x is equal to a मिला है 1/2 into, सॉरी वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे 2x + 2, कॉल दिस इक्वेशन एज अ 3 प्लस b है -1/2, ये जो x है वो हमें यहाँ पुट करना है, ठीक है, therefore I1 is equal to इंटीग्रेशन ऑफ x की न्यू वैल्यू 1/2 into 2x + 1 minus 1/2 upon x² + x + 1, ठीक है, तो अब क्या करना है, here the middle sign is minus, so just separate the denominator and integral also, which is equal to 1/2 integration of 2x + 1 upon x² + x + 1 minus 1/2 integration of 1 upon x² + x + 1, ठीक है, अब इसका क्या करना है, ठीक, -1/2 इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ हम थर्ड टर्म निकाल लेते हैं x² + x, थर्ड टर्म क्या होगी 1/4, ऐड भी करेंगे सब्सट्रैक्ट भी करेंगे +1, ठीक, therefore I1 is equal to 1/2 log of mod of x² + x + 1 minus 1/2 integration of 1/ax plus 1/2, these three terms means, okay, 4 into 1 4, 4 minus 1 3, 3 means √3/2 brackets, ठीक।
एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 माइनस 1/2 इसकी वैल्यू हम निकाल रहे थे, क्या होगी वो 1/a, a मीन्स √3/2 इनटू tan इनवर्स ऑफ x प्लस 1/2 अपॉन √3/2 ब्रैकेट कंप्लीट प्लस c। और आपको एक बात याद रखनी है, ये जो है ना इसकी ही वैल्यू हमने यहाँ फाइंड आउट की है, वो मैंने ब्रैकेट में लिखी, ठीक है। तो ये रहा I1, ये I1 हम कहाँ पुट करेंगे, इंटीग्रल। Therefore equation second becomes, देखो I is equal to 1/3 log of mod of x minus 1 minus 1/3, हमें पुट करना है I1, I1 की वैल्यू क्या मिली है 1/2 log of mod of x square plus x plus 1, ठीक है। माइनस 1/2 से अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। दिस 2 to get कैंसल, सो माइनस 1/√3 tan inverse of, here by taking cross multiplication and by simplifying we get 2x plus 1 upon √3 ब्रैकेट कंप्लीट, ओके। एंड देखो माइनस 2/3 किसकी वैल्यू लेनी है I2 की, और I2 की वैल्यू तो हमने फाइंड आउट की है, देखो ये वैल्यू, तो क्या मिलेगा 2/√3, 1/√3/2 मीन्स 2/√3 tan inverse of 2x plus 1 upon 3 ब्रैकेट कंप्लीट प्लस c, देखो ये रहा c1, इसका c, ठीक है। अब थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, therefore I is equal to 1/3 log of mod of x minus 1 minus 1/6 log of mod of x square plus x plus 1, ठीक है। it becomes positive 1/3√3, ठीक है। tan inverse of 2x plus 1 upon √3 एंड ये वैल्यू मिलेगी माइनस 4/3√3, ठीक है। tan इनवर्स ऑफ 2x plus 1 upon √3 प्लस इसके लिए कांस्टेंट लेंगे k, c1 plus ck, देखो ये दो टर्म्स एज इट इज होगी, यहाँ से आप देखो 1/3√3 माइनस 4/3√3 मीन्स हमें क्या मिलेगा I is equal to 1/3 log of mod of x minus 1 minus 1/6 log of mod of x square plus x plus 1, ठीक है। एंड हियर बाय सिंप्लीफाइंग वी गेट माइनस 1/3√3 tan inverse of 2x plus 1 upon √3 plus k, so this is